آج میں پھر نارووال سپورٹ سٹی کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور یہ جو احتساب کے نام پہ انتقام کا ناٹک چل رہا ہے، اس کا مقصد صرف عمران نیازی صاحب کے مخالف کارروائی میں الجھا کر اپوزیشن کی کردار کو کمزور کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے اونچے ہتھ سے نہ ہماری آواز مدھم ہوگی، نہ ہماری کوشش کم ہوگی۔ اور یہ جو کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، پاکستان تحریک جھوٹ کی حکومت ہے، چونکہ جو جھوٹ کارپوریشن ملک چلا رہی ہے اس کے چیئرمین عمران نیازی ہیں اور اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر شہزاد اکبر ہیں۔ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بے بنیاد جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور جن کے خلاف الزامات لگاتے ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ آ کر اپنا دفاع کر سکیں۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور انہیں جیل آ کر اپنا دفاع کر سکیں۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور انہیں جیل میں ڈال کے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ یا تو ان کو سامنے بٹھائیں، ان کو بھی موقع دیں کہ آپ کی طرح وہ بھی آ کے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکیں۔ مجھ پہ میں بار بار دہرا چکا ہوں، 1.5 سال پہلے ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں اس سے کہ 1.5-2 سال پہلے مجھ پہ الزام لگایا، شد و مت سے لگایا، قومی اسمبلی میں لگایا، پریس کانفرنسوں پہ لگایا کہ جی حسن اقبال 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کمیشن کھا گیا ہے، اور ہم جے آئی ٹی بنا رہے ہیں۔ آج تک اس جے آئی ٹی کی جے بھی نظر نہیں آئی کہیں۔ بھئی آپ بتائیں کہ وہ 70 ارب کس نے کھایا ہے؟ سکھر موٹر وے چین کی حکومت نے بنائی ہے، اور ملتان سکھر موٹر وے کا ایک ایک پیسہ چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو دیا ہے۔ حکومت پاکستان کے خزانے سے وہ پیسہ نہیں گیا۔ تو جب آپ مجھ پہ 70 ارب روپے کا الزام لگا رہے ہیں تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا مجھے چین کی حکومت نے کمیشن دیا ہے، یا چین کی حکومت کے نامزد کردہ کانٹریکٹر اس نے مجھے چین کے پیسے میں سے کمیشن دیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ ہمارے دوست ملک چین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جس نے پاکستان کا ہاتھ پکڑ کے سی پیک منصوبہ کامیاب کیا۔ آپ چین میں جاتے ہیں، بیجنگ میں، تو وہاں پہ قصیدے پڑھتے ہیں سی پیک کے، پڑھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ملک ہے، ہم چین سے اور مدد مانگتے ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ کے وزیر چین کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہی 2 عملی ہے جس کی وجہ سے آج سی پیک سٹال ہو چکا ہے۔ ہم نے چین کی حکومت کو کیا جواب دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اتنی گراں قدر سرمایہ کاری کی، انرجی میں، انفراسٹرکچر میں، موٹر ویز میں، گوادر پورٹ بنانے میں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ چین کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی تعلقات کو اور دوستی کو سیبوتاژ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں پھر اس وزیر کو کہتا ہوں کہ جو آ کے ٹی وی کے اوپر ایک چلتا ہے تیز گام کی طرح، بھئی کہاں ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے وہ الزام کا۔ میں اس ملتان سکھر موٹر وے کا ہی انتظار نہیں کر رہا۔ میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے پلاننگ منسٹری سے، اس میں سے 32 روپے کی پرسنل گین ثابت کرو کہ کسی سے کمیشن لیا ہے، کسی سے کک بیک لی ہے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کر کے اپنے ذاتی جائیداد، لیکن تم ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے، صرف تمہیں جھوٹ بولنے کی توفیق ہے۔ تو یہ جو کردار کشی ہے، یہ جو بہتان بازی ہے، اسی کی نحوست ہے کہ پاکستان دن بدن ڈوب رہا ہے۔ جن لوگوں نے محنت سے اس ملک کو بنایا، دیانتداری سے ملک کو چلایا، آج ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں
700 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों में बचत करके दिखाई है। वो मंसूबे जो वजारतों से आते थे, उनकी जांच पड़ताल के ज़रिए हमने 700 अरब रुपया उन मंसूबों की लागत में कमी करके पाकिस्तान का कीमती सरमाया बचाया है। हमने एक एक पैसे को कौम की अमानत समझ के लगाया है। यही वजह है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर एक पैसे की माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है, नहीं लगा सके। ये 2 साल से लगे हुए थे। मेरे बैंक पड़ताल किए, मेरी जायदादें पड़ताल की, पूरे पाकिस्तान को ख़त लिखे और जो रेफरेंस दाखिल किया है वो ये है, जनाब आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके स्पोर्ट सिटी क्यों बना दिया है। और उसी रेफरेंस में ये भी लिखा है कि ऐसी सहूलत तो पाकिस्तान में कहीं नहीं थी, आपने नारोवाल में क्यों बना दी है। भाई नारोवाल हिंदुस्तान में है, नारोवाल इसराइल में है, क्या वो पाकिस्तान में नहीं है। और नारोवाल का चुनाव तो 2009 में मुझसे पहले हो चुका था। तो अगर हमने अधूरे मंसूबे मुकम्मल किए हैं तो वो नारोवाल स्पोर्ट सिटी ही नहीं किया, लवारी टनल को भी मुकम्मल किया है, लियारी एक्सप्रेस वे को भी मुकम्मल किया है, कच्ची कनाल को भी मुकम्मल किया है, नीलम जेलम को भी मुकम्मल किया है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल किया है। वो जितने सफ़ेद हाथी 2013 में हमें मिले थे, हम सारों को 2018 में मुकम्मल करके गए हैं। तो पाकिस्तान में जदीद तरीन स्पोर्ट्स की सहूलत बनाना अगर जुर्म है, इसके लिए इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज़ है, तो ये जुर्म नहीं है, इस पे मुझे फ़ख्र है। ये जुर्म बार बार करूँगा और दोबारा मिला मौका तो इस जैसी मज़ीद स्पोर्ट सिटी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बनाएंगे, ताकि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हों। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इमरान खान ने बयान दिया देयर इज़ नो मनी फॉर डेवलपमेंट। आज पाकिस्तान को तबाह कर दिया है डेवलपमेंट बजट ख़त्म करके, चूँकि इस हुकूमत के खसारे बेकाबू हो चुके हैं। इनका खसारे पे काबू नहीं है, अपने डेफिसिट पे काबू नहीं है, उसे कम करने के लिए डेवलपमेंट बजट पे कुल्हाड़ी चला देते हैं। और जब डेवलपमेंट बजट कम होता है तो उससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है। जो हमारे मुस्तकबिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनता। हमने सालाना तरक्याती बजट को 1000 अरब पे पहुंचाया था, आज सालाना तरक्याती बजट 550 अरब पे आ गया, तकरीबन निसफ रह गया और कोई एक नया मंसूबा ये शुरू नहीं कर सके। तकरीबन 70 से ज़्यादा ऐसे मंसूबे हैं जिन्हें 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अभी भी वो 2021 में जारी हैं, चूँकि उनकी फंडिंग पूरी नहीं की जा रही। और ये सब मंसूबे बीमार हो रहे हैं। जिन मंसूबों ने 2019 में मुकम्मल होना था वो अब कहीं 2024 में मुकम्मल होंगे। तो ये जो पाकिस्तान के मिसमैनेजमेंट है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान नियाज़ी साहब ये बताइए। आपने इकॉनमी क्रैश कर दी, आपने डेवलपमेंट बजट ख़त्म कर दिया, फिर कहते हैं देयर इज़ नो मनी फॉर डेवलपमेंट, चूँकि हम एक कैश इकॉनमी बन गए हैं। कैश इकॉनमी इसलिए बने हैं कि ये नैब को आपने इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। नैब और FIA पाकिस्तान के बिजनेसमैन को हाउंड कर रहा है, हरासा कर रहा है। लिहाजा हर बिजनेसमैन और इंडिया है, या पैसा मुल्क से बाहर चला गया है या पैसा अंडरग्राउंड हो गया है। मईशत एतमाद से चलती है, कॉन्फिडेंस से चलती है, सेंटिमेंट से चलती है। आप जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा के हर मुखालिफ को और कारोबारी तबके को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी कैश इकॉनमी नहीं बनेगी या वो स्लो डाउन नहीं होगी तो क्या होगी? तो लिहाजा ये हुकूमत अपने नाम नहाद एहतसाब के निज़ाम से सिर्फ किरदार कुशी कर सकती है। 2.5 साल हो गए हैं, एक केस नहीं साबित कर सके कि इस केस के अंदर, इस मोटरवे के प्रोजेक्ट में
इस तवानाई के मंसूबे में, इस सी पैक के मंसूबे में इतने अरब का, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने हज़ार का फलाना गबन आपने करके अपनी जेब में डाला है। केस बनता है जी, असासे हैं, आमदन से ज़्यादा असासे। आप मेरे हवाले नैब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, जिस ब्यूरोक्रेट को कहेंगे, जिस सहाफ़ी को कहेंगे, जिस कारोबारी शख्स को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। ये सबसे भूंडा केस है जो बनाया जा सकता है। तो बात यह है कि आप बताएं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन लिया है, किस प्रोजेक्ट में किकबैक लिया है, कौन से सरकारी बजट में गबन किया है। वो 2.5 साल हो गए हैं। आप सवाए टीवी पे आके कागज़ लहराते हैं, झूठ बोलते हैं, किरदार कुशी करते हैं और चले जाते हैं। मैं फिर आपको इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर और उस मुराद सईद वज़ीर को इस आपके चैनल से खड़ा होकर कह रहा हूँ कि कहाँ है वो मुल्तान सखर मोटरवे 70 अरब रुपए का केस जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले से आपने फजूल इल्ज़ामात लगा के किरदार कुशी की है मेरी। बताएं कहाँ है वो केस, किसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। मुल्तान सखर मोटरवे पाकिस्तान के पैसे से नहीं बना, उसकी बराह रास्त अदायगी चीन ने की है। तो क्या आप चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कहाँ है 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। साबित करें आप कि किस 32 रुपए का भी कमीशन लिया हो, किकबैक ली हो या उससे कोई फाइनेंशियल गेन लिया हो। आप नहीं कर सकते साबित, लेकिन आप टीवी पे आके झूठ बोल सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इससे मुल्क नहीं चलेगा। और जो लोग इनको लाए हैं, मैं उनसे ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने बीमार कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट बजट काट दिए गए हैं, उनका करंट बजट काट दिया गया है। वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हमने 3 सालों में खड़े कर देने थे, वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हम बना रहे थे, सब प्रोजेक्ट्स इस वक्त बीमार हो चुके हैं। नौजवान का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, हायर एजुकेशन को तबाह करके, एजुकेशन की फंडिंग काट के और टेक्नोलॉजी की फंडिंग काट के, और तकरीरें ये बड़ी बड़ी करते हैं। इनको मुल्क चलाना नहीं आता, इनको सिर्फ मुल्क उजाड़ना आता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पीडीएम का जो असल काज था कि हुकूमत गिराएंगे, लेकिन फिर अपोजिशन ने कहा हम इस्तीफे भी लेंगे, ना इस्तीफे ले सके ना हुकूमत घर जा सकी। अब कल पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। अब बयानिया क्या है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, और साथ ये कि अब डीजीएसपीआर ने भी कह दिया आएंगे तो फिर चाहे भी बुलाएंगे। पीडीएम ने ये कभी नहीं कहा था कि हम सेनेट का बॉयकॉट करेंगे, इसलिए कि सेनेट में अगर पीडीएम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। पीडीएम की जिद्दोजहद का मरकज़ी नुक्ता आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, और अगर सेनेट में इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। वो आइन जिसमें से हमने मार्शल लॉ की शिकें निकाली हैं, उनको ये दोबारा डालने की कोशिश कर सकते हैं। 58(2)B को दोबारा लाने की कोशिश कर सकते हैं। 18वीं तरमीम को रोल बैक कर सकते हैं। तो जो वफाकी पार्लिमानी ढांचा है आइन का, वो तब्दील करने के लिए एक चोर दरवाज़ा इस हुकूमत को मिल सकता है। लिहाजा ये पीडीएम का फ़र्ज़ है कि अगर हमने आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी है तो हम पार्लियामेंट के मोर्चे में ऐसा चोर दरवाज़ा हुकूमत को ना दें जिससे वो आइन पे हमला कर सकें। इसलिए सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे उस बुनियादी नुक्ते का तकाजा है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। दूसरी बात, हम अपने लॉन्ग मार्च को करेंगे, उस पे पूरी पीडीएम मुत्तफ़िक़ है और ये तारीख़ साज लॉन्ग मार्च होगी। और इसी तरह जो इस्तीफ़े हैं
उस पर भी PDM की सब क़यादत कह चुकी है कि जो ही हम मुनासिब समझेंगे कि अब लोहा गर्म है, सारी अपोजिशन इस्तीफ़े देगी और जब 400 से ज़्यादा इस्तीफ़े आएंगे तो ये ढांचा रेत के किले की तरह गिर जाएगा। तो इसलिए किसी किस्म की PDM की जिद्दोजहद में कमी नहीं। PDM रैलीज़ कर रही है जिनका मकसद लॉन्ग मार्च के लिए अपने पैगाम को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाना है, और हमारे रैलीज़ के बाद जब लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो यहाँ पे फिर किसी के पास पाँव रखने की जगह नहीं होगी। फौज के तर्जमान ने ये कहा है कि फौज बैक चैनल नहीं इस्तेमाल कर रही, चाय पीने क्या GHQ जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब इमरान नियाज़ी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये PDM फ़ौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो, और फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा अपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। तो जब कोई चैनल नहीं है तो हम फ़ौज को कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उल्टो? ये जो मौसूफ़ है ना, ये हेलुसिनेशन का शिकार है, ये ख़ुद फरेबी का शिकार है, और ये एक ज़हनी कैफियत है जो ख़ास किस्म की अशख़ास में पाई जाती है कि आप अपने जहन के अंदर एक दुनिया तख़य्युल करते हैं और उसी को सच मान के उसके ऊपर चलते हैं। मैं समझता हूँ कि इस ज़हनी बुलबुले से इन्हें निकलना चाहिए, हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। और देखें गरीब आदमी का क्या हो रहा है, मज़दूर का क्या हो रहा है, किसान का क्या हो रहा है। ये जो घी की कीमत 250 रुपये किलो से ऊपर चली गई है, 270 रुपये किलो पे चली गई है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? इमरान नियाज़ी साहब। अभी आटे और चीनी का ज़ख़म जो है वो हील नहीं हुआ था, आपने अब घी का ताज़ियाना भी लगा दिया है लोगों के ऊपर। अब ये गरीब आदमी को आप ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं देना चाहते। पहली दफ़ा हुआ है कि जहाँ घी जो है वो एक किसी बहुत महंगे मशरूब की तरह छोटी छोटी बोतलों में बिक रहा है, 20-20 रुपए की छोटी छोटी बोतलों में, चूँकि गरीब आदमी 270 रुपए किलो घी नहीं ख़रीद सकता। तो ये पाकिस्तान आपने उजाड़ दिया है। बिजली आपसे नहीं चलती और कहते हैं जी पिछड़ों का कसूर है। भाई सर्दियों में तो आधी मांग होती है, गर्मियों में अगर 24,000 मेगावाट इस ट्रांसमिशन के सिस्टम ने उठाई है, तो आप कह रहे हैं कि सर्दियों में 14,000 मेगावाट उठाने की इस सिस्टम में कोई ताकत नहीं है, पिछली हुकूमत का कसूर है। तो ये जो पिछली हुकूमत सिंड्रोम है उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपने करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। और ये बात आप नोट कर लें कि जिस दिन ये हुकूमत गिरेगी सबसे पहला मुल्क से भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा, और इसका नाम ECL पे डालना चाहिए ताकि ये लोग जो झूठ के ऊपर लोगों की किरदार कुशी करते रहे हैं, इनको इनके अमाल के लिए जवाबदेह होना पड़े। और इमरान नियाज़ी को भी लंदन भागने नहीं दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की जो तबाही की है और कश्मीर का जो सौदा किया है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला गद्दारी का मुकदमा चलेगा इमरान नियाज़ी के ऊपर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।